a lot of people think that I am not particularly fat, so I may be healthy. आज हमारा जब डिस्कशन होती है जहाँ भी हम जाते हैं सिर्फ वेट को लेके होती है, इसका इतना वजन हो गया, मेरा पहले इतना था, अभी इतना हो गया, बट यू नो कोई इंसान थोड़ा सा ओवरवेट हो सकता है एंड ही और शी माइट बी परफेक्टली हेल्दी, और कोई इंसान देखने में एकदम कांटा जैसा हो सकता है, बट हो सकता है भगवान ने उसे बना के ऐसा भेजा हो तो अंदर से बहुत मजबूत। सो आज जो सोसाइटी में ये हो गया ना पतला मोटा, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर हेल्थ until it is an extreme. Another thing we tend to think कि I don't have any disease, I don't take any regular medication, so मैं healthy हूँ. आज maximum people they are thinking कि चलो इन्हें कोई बीमारी नहीं है ना तो ये healthy हैं. But ये complete picture नहीं है. Absence of disease is not necessarily health. Another thing, I manage my home and work like most of the working people. लेकिन मुझे सिर दर्द कभी हो जाता है, कभी पेट खराब हो जाता है, थकावट तो रहती है, तो ये सब तो चलता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. वी एक्सेप्ट दिस. हमने ये समझौता कर लिया कि ये तो एज के साथ होना ही है एंड वी हैव टू टेक इट इन आवर स्ट्रेंथ. और ये समझौता हम करते जाते हैं कब तक, जब तक चलता है. सो हेल्थ की अवेयरनेस का मतलब है कि हमें ये सब जो फैक्टर्स हैं इसके बियॉन्ड सोचना है. आज जब हम हेल्थ अवेयरनेस एंड अचीवेबिलिटी की बात करते हैं तो वी कैन ओनली अचीव समथिंग वंस वी आर अवेयर कि वो है क्या. वी हैव टू डिफाइन व्हाट आइडिया वी हैव ऑफ हेल्थ. तो सबसे पहले तो हेल्थ क्या चीज है ये बहुत क्लियरली हमें पता होना चाहिए. सिर्फ सोसाइटी में क्या बातें चल रही हैं वो नहीं पता एग्जैक्टली है क्या. सो जैसे मैम ने बोला WHO, World Health Organization, it defines health exactly like you said. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity. I'm so happy, ma'am. कि यहाँ पे awareness level इतना ज़्यादा है. So जब हम health के बारे में सोचें, don't think about the absence of disease. Don't think in terms of disease. Disease है कि नहीं. But measure your health in terms of well-being, on a scale of well-being, how well you feel physically, mentally, and even socially. So this is what the WHO has to say about health. Very sad story. जब इंडिया की हालत आज हम देखते हैं, where we Indians stand in terms of health today. ये चीजें मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है. You know, India ranks second highest in the number of obese children in the world. Obesity. आज से I think 30-50 years ago it was not to be seen, but it's spreading like an epidemic. वो भी बच्चों में, ये हमारे बच्चों की हालत है. At least about 30% of children and adolescents in cities are obese. ऐसे हमें पता नहीं चलता. बॉम्बे जाइए, दिल्ली जाइए, मेट्रोज में जाइए, ऐसे ऐसे बच्चे कितने हैं. And their parents are not able to help. कहते ऐसे ही है हमारे बच्चे. And ऐसे बच्चों का फ्यूचर क्या होने वाला है. Obesity is directly linked to so many diseases, directly. That means more than 15 million children in urban area today are overweight. और इंडिया में दोनों एक्सट्रीम हैं. अगर आप विलेजेस में चले जाएंगे, children are undernourished, they are skinny. और आप सिटीज में देखेंगे तो kids are overweight. There is no balance. हेल्थ का उधर है ना इधर है. तो एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए. बीइंग टीचर्स, हम मतलब बच्चों की हालत क्या है आज. तो जब अवेयरनेस आएगी तो सॉल्यूशंस भी. तो ये तो हालत है. 30% चिल्ड्रन आज सिटीज में ऐसे हैं. एंड इंडिया की अगर ओवरऑल बात करें तो वी आर नाउ द थर्ड मोस्ट ओबीस कंट्री इन द वर्ल्ड. The number of obese people we have today is that much. और World Obesity Federation कह रही है कि 48.3 million Indians are likely to be obese by 2025.
so fit, I must appreciate you. But अगर हम सर्वे की माने ना, तो 50% more than 50% Delhi में it's more than 50% urban women are obese, not even overweight, obese. So that means 1 in every 5 Indians below the age of 45 they have at least one health issue. 45 भी नहीं टच कर रहे हैं आज लोग, chronic health issue को आ जाता है. And 2 in every 3 senior citizens in India suffer from some chronic disease. Or that means कि 23% elderly in urban areas they have multiple diseases. यानी आज धीरे धीरे ये माइंडसेट हो रहा है कि उम्र बढ़ेगी बुढ़ापा आएगा तो बीमारी तो आनी है. दिस इज अ माइंडसेट दैट इज डेवलपिंग. इसीलिए लोग आई थिंक दैट इज बैकफायरिंग कि लोग अपने यंग ईयर्स में ना सब कुछ करना चाह रहे हैं. खा लो अभी जो खाना है खा लो क्योंकि बुढ़ापे में तो यही हाल होने वाला है. Today every family has सबके दादा दादी हैं जो भी जॉइंट फैमिलीज में हैं, सबको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है. But this was not the scene about 50 years ago. Even the elders जो दादा दादी थे वो भी बहुत फिट हुआ करते थे. Old age does not mean disease. But आज हमारी हालत ये है 88% families in India are unhealthy. 88%. You know हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर रहे हैं पर हेल्थी नहीं रहे तो क्या करेंगे उसमें? So this is a very shocking statistics. जो हम अपना WhatsApp स्टेटस डालते हैं ये हमारे कंट्री का WhatsApp स्टेटस है हेल्थ की टर्म्स. And we need to be at least aware. Be aware कि ये है क्या, वो क्या है. You must be doing something wrong. आप में से कितने लोग जगी वासुदेव सदगुरु को जानते हैं? सदगुरु. You know मैं उनकी वीडियोस कभी देखती हूँ. And उन्होंने अपनी वीडियो में बहुत ऐसा कुछ बोला जो मेरे को एकदम से लगा. He said that a few years ago पूरे विलेज का ना एक डॉक्टर होता है और आज टाइम ऐसा है कि हर गली में 5 डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे and still we are getting sicker and sicker and sicker. So health को तो सेंटर में रखिए अपनी लाइफ में and come here create this awareness. Don't think कि अभी चल रहा है तो चला लो. No, you have to keep health in the center of your life because until and unless you nourish your health, you take care of it, you will not be able to do what you want to do in life. और कहते हैं समझदारी उसी में है कि दूसरों का देख के समझ जाओ तो अपने साथ मत छोड़ो. राइट. सो अभी हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. डिजीज दो तरह के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक. जो हमें सर्दी जुकाम बुखार ये सब लगा है दैट कम्स अंडर एक्यूट. जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज they caused by bacteria, virus, या फिर if somebody has broken his or her arm, leg, fracture हो गया, कोई accident हो गया, that is also an acute case. या फिर food poisoning हो गई, that is an acute case. You can just see quickly that acute diseases they develop rapidly or suddenly. अचानक से हमें जुकाम बुखार ये सब आता है. But the most suddenly it comes, the same speed it goes also. It resolves. Usually हम डॉक्टर के पास जाते हैं, gives us the medicine and it gets resolved. और जितने acute diseases हैं, we have complete cure for them. कोई problem नहीं है. It is an external attack on our body and it gets cured. But जो मैंने आपको statistics दिखाए थे, they were not referring to acute diseases. They were chronic diseases. और आज हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न है chronic diseases. Chronic diseases वो है जो आप एक दिन सडनली उठते हैं आपको पता चले अभी मुझे डायबिटीज हो गया, चलो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर कहते हैं कि आप ये हफ्ता भर दवाई लेते हैं ठीक हो जाएगा.
सालों साल, समटाइम्स इवन डेकेड्स, एंड देन जब बिल्कुल वो क्रैश हो जाते हैं ना, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं बहुत जल्दी आ गए। तो अब वो जो डॉक्टर भी है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। He can only support you by giving medications which work on your symptoms. It is not a curative thing. So हमारा जो concern है, that is chronic disease. I think ये basic understanding हमें होना बहुत जरूरी है about the type of diseases. So we will talk. We are more concerned about the chronic diseases. And chronic diseases कौन से हैं? जितने भी lifestyle diseases, diabetes, arthritis, hypertension, जितने भी कहते हैं कि उम्र के साथ तो ये होने ही है, जोड़ों का दर्द, everything. So, like I said, doctors and medical industry are very effective and useful for treating acute diseases. But what about chronic diseases? इसके लिए क्या? As of now, we don't have any support system in our society. बहुत बड़ा गैप है। वो डॉक्टर के पास हम जाएं, उससे पहले जो 10-15 साल का कोई मैसेज भी था, वो जो टाइम था, we could have prevented that disease. But very sadly, no support system in our society. पूरे सेटअप में ऐसा कोई support system ही नहीं है, जो हमें उस टाइम पे हैंड होल्ड करे। So, अगर आप हेल्थ और डिजीज को समझना चाहते हैं, तो ये कब समझना? It will be very clear. ये है हमारी ऑप्टिमल हेल्थ, जो आपने डिफाइन किया हेल्थ. Health is a state of well-being, which is somewhere here. और ये है डिजीज, क्रॉनिक डिजीज. और हम लोग हर रोज, most of us, we are somewhere in between. We are somewhere in between. अगर हम कुछ अच्छा कर लेते हैं, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है, हम कॉन्शियसली कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, तो we'll be slipping down towards optimal health. नहीं तो अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे ना, अगर हम एज इट इज चल रहे हैं, लाइफ चल रही है, बढ़िया चल रही है, सब ठीक है, अभी 10/10, तो हम एक्चुअल में हम खिसकते जा रहे हैं ऊपर. We are climbing up this S curve towards disease. There are timely one. Why I'm saying this, I'm not trying to scare you, but why I'm saying is that आज से 50-100 साल पहले अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो हम यही होते, कुछ भी नहीं करने. हमारा खाना पीना, रहन सहन, हवा पानी, चीजें इतनी प्योर होती थी. सोशल इतने फेस्टिवल्स होते थे, इतनी गैदरिंग्स होती थी, इतनी बॉन्डिंग होती थी, इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, लोग इतने सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा था कि कुछ भी मत करो, आप ऑप्टिमल हेल्थ में रहो. और नहीं कुछ तो घर में जो दादी नानी होती थी ना, उनको इतना कुछ पता होता था, तो कुछ भी मत करो, आप ऑप्टिमल हेल्थ में रहे. वो टाइम था, इट एग्जिस्टेड. बट आज सैडली ऐसा टाइम है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते ना, तो लाइफस्टाइल, हवा पानी, इतनी रेडिएशन में हम रह रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों की फैमिलीज इतनी छोटी हो गई है, और लोगों के दिल भी छोटे हो गए. तो किसी ने कुछ बात कह दी तो वो मन में ही रह जाती है. एक घंटा 2 घंटे नहीं, कई बार महीनों साल वो अटैक थी ना दिमाग में, कोई डिजीज में आ गई. पहले जाते थे, लड़ाई होती थी, थोड़ी देर बाद हक कर लो, चलो तो मेरा भाई है, Technology is actually a barrier between these relationships. Yes. और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही ना, एनवायरनमेंट, आज जितने ये हम इसको टच कर रहे हैं, इज नॉट नेचुरल. हम जिन चेयर्स पे बैठते हैं वो प्लास्टिक है, हम जिन कंटेनर्स में खाते हैं वो प्लास्टिक है, हम माइक्रो करते हैं, हम 24 घंटे वाईफाई में रहते हैं. सो कहने का मतलब, अगर आज हम कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो थैंक गॉड कीजिए कि आप अभी ठीक हो, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे पकड़ के रखें. गुड हेल्थ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड,
एंड वी मस्ट रियलाइज दिस कि आज के टाइम में हमें उसे पकड़ के रखना है। वी कांट जस्ट लेट इट बी। तो हम खिसक के इधर ही जाने वाले हैं। एंड यहाँ के एक्चुअली डायग्नोज होते हैं कि डिजीज है जब आपके रिपोर्ट्स में आने लगता है कि आपका फास्टिंग ग्लूकोज इतना बढ़ा हुआ है, तो उस स्टेज पे एक्चुअली कुछ हो नहीं सकता है until and unless आप बहुत अच्छा किसी गाइडेंस में रिवर्सल करने की ट्राई करें। बट जो मेडिकेशंस अवेलेबल है दे आर जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल द सिम्पटम्स। और आपने जैसे कि देखा 67% एल्डरली वो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। और अगर हमें स्टेप्स लेने हैं तो हमें आज से ही लेने हैं। हेल्थ इज लाइक मनी। आप अपनी रिटायरमेंट का प्लान अभी करते हैं, ये नहीं कि जब हो जाएंगे तब देख लेंगे ना कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किधर से पैसा आएगा। नहीं, हेल्थ इज सिमिलर। यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर हेल्थ राइट नाउ, द सूनर द बेटर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कर्व। आप इधर से इधर जाना चाहते हैं, इधर जाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे तो ये मान के चलिए कि इधर ही जा रहे हैं। सो गेट अ होल्ड ऑफ योर